Hello and welcome dear students. So here I have come up with the Geography chapter 1 of class 10 which includes in SST. Okay. Before moving into the chapter itself, let us first understand what does the chapter Geography actually mean. Okay. Geography क्या होता है वो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद we'll move into the particular chapter. Whenever we say geography, okay, the word geography is actually composed of two words. One is geo, another is graphy. Okay, geo means earth and graphy means description. Do remember, graphy means what? Description. Now, whenever I say geography, it means the description about the earth, the subject which describes earth, it is geography. Clear? Now, it means that whatever existed in the earth, each and everything would come under the domain of geography. Now we can say from it that geography is the mother of all the sciences whatever been discovered till now. Clear? तो geography क्या हो गया? Geography is the description about earth. Clear? So now let us move into the chapter. The chapter is economic geography, subject matter and resources. Okay? Now, mostly there are two parts of geography. There are two main parts of geography. Another is natural geography, another is human geography. Whenever we say natural geography, whatever is existed in the earth naturally comes under the domain of natural geography, and whatever is created by the human itself, it is human geography. Clear? Understood or not? जो भी अर्थ में पहले से एग्जिस्टेड है वो हो गया आपका नेचुरल जियोग्राफी, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर. ओके, देन बहुत सारे लैंडफॉर्म्स, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेचूज, plains. Okay, all these comes under the domain of natural geography. Forest bhi, rivers, lakes. Okay, rivers, lakes, seas, all these comes under the domain of natural geography. But whatever is created by the human being itself, say for example buildings, bridges, roads, industries, factories, plantations. Clear? And this skyscrapers, all these comes under the domain of human geography. So if we have understood the concept of natural geography and human geography, now we can move forward. The name of the chapter is economic geography. Economy, you need to understand economy क्या होता है. Economy, then you can able to understand economic geography. Whenever you say economy, means something related to money, something which has the value in exchange. Okay, now whenever we say economy, economics से आया है economy. Okay, whenever we'll study economics, we will just clarify the concept. Okay, just simply you should understand economy means something which is related to money or something which has the value in exchange. Clear? Now, whenever we said economic geography, it is also economic geography. पैसा किसने बनाया? इंसानों ने बनाया. Isn't it? Something which has the value in exchange. तो exchange कौन करेगा? इंसान करेंगे. So it means that economic geography is the branch of human geography. Clear? Which deals with or which studies production, distribution, consumption and exchange of resources and activities of the people involved in them. These all are the subject matter of economic geography. Whenever we say resources, we will study in deep. Just be with me, we'll study it. Okay, resources.
फॉर एवरीथिंग टू बी रिसोर्सेस एंड एसेट्स, रिसोर्स और एसेट होने के लिए उस चीज का फंक्शनलिटी होना चाहिए, वो चीज ऐसे ही पड़ा हुआ होना नहीं चाहिए, एंड इट मस्ट बी यूजफुल, मीन्स इट मस्ट हैव द यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, उसी को हम रिसोर्स कहेंगे। तो कोई भी रिसोर्स का, ठीक है, कोई भी रिसोर्स का प्रोडक्शन, जैसे कि आप मान लीजिए चावल, राइस इज अ रिसोर्स, वी कैन से यस इट हैज द फंक्शनलिटी। कैसे फंक्शनलिटी है? ये इंसान की भूख को मिटाता है, एक, इट हैज द यूजफुलनेस, राइस खाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे, क्लियर, तो राइस कैन बी ए रिसोर्स, क्लियर। नाउ तो इफ राइस इज ए रिसोर्स, उसका प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन and ultimately consumption and exchange of resources and the activities, human activities involved in them, all under comes on domain of economic geography. Clear to you? Okay, moving forward. Now there are lots of branches of economic geography. पहला आ गया आपका agricultural geography. Whenever we say agricultural geography, agriculture कौन करता है? Humans करते हैं, okay. तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे? पहला टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, पहला तो हो गया हम क्या पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर, पहला। दूसरा, फिर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के तरीके, फिर मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे प्रिमिटिव मेथड अलग था, अभी मॉडर्न मेथड अलग है, ज्यादातर चीजें मशीनों से होती है। फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और टाइप्स ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड अंडर द एग्रीकल्चर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड अल्टीमेटली कंजम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, ऑल कम्स अंडर द डोमेन ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट से खरीफ क्रॉप्स याद रख लीजिए, एंड रबी क्रॉप्स, ठीक है। अभी का जो सीजन है इसमें जो क्रॉप्स बोए जाएंगे, जैसे कि हो गया आपका मेज, इजंट इट, राइस मतलब पेडी, ये सब आता है आपके खरीफ क्रॉप्स के अंडर में। रबी क्रॉप में आ गया आपका मिलेट्स, देन यू कैन से पल्सेस, ये सब रबी क्रॉप्स के अंदर में आते हैं, ओके। जो मॉनसून को छोड़ के जो क्रॉप्स बोए जाते हैं मोस्टली दे आर रबी क्रॉप्स, ओके। सो ये सब जो क्रॉप्स के बारे में हम कह रहे हैं, ऑल दिस कम्स अंडर द डोमेन ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। नेक्स्ट आ गया आपका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, ओके। पहला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर टाइप्स ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड, कमोडिटीज मतलब सामान, क्या क्या सामान बनता है, ओके। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, फिर कंजम्पशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, उसका प्राइसिंग, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, सब इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में आता है। फिर ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेस, व्हेनेवर वी से ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होता है? मोस्टली जिसका यूजफुलनेस होता है और जिसका फंक्शनलिटी या एफिशिएंसी होता है, वो हो गया रिसोर्स। व्हेनेवर वी से रिसोर्स ज्योग्राफी, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस पढ़ेंगे, रिसोर्स कितने तरीके के होते हैं, कहां कहां पाया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कहां है। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जैसे डायमंड वी कैन से इट्स ए रिसोर्स, बट 80% ऑफ द डायमंड्स एक्चुअली फाउंड इन साउथ अफ्रीका इटसेल्फ। तो क्या दूसरे लोगों को डायमंड पहनने का हक नहीं है? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ओके। फिर अल्टीमेट उसका कंजम्पशन। ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है कि नहीं? जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, 4 तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है, ओके। ट्रांसपोर्टेशन में पैसेंजर भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो सारे ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी में आता है।
देन आगे आपका मार्केट जियोग्राफी। मार्केट जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, बहुत तरीके का मार्केट होता है। इकोनॉमिक्स में हम इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट में हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट। अभी मोनोपोली मार्केट क्या है? वेयर देयर इज ए सिंगल सेलर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, डुओपोली मार्केट, मींस देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मार्केट। कौन सा मार्केट में किस तरीके का सामान पाया जाता है, मार्केट की दूरी एक्चुअल कंज्यूमर से कितनी दूरी पर है। ओके, these are types of market. But nowadays whenever we say market, earlier the market concept of market was narrow, means earlier पहले जमाने में मार्केट मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर दो ही लोग पाए जाते थे, बायर, वन इज बायर एंड अदर इज सेलर। ओके, बायर आता था खरीदने के लिए, सेलर आता था बेचने के लिए, एंड फिजिकल विजिट होती थी, उसी प्लेस को मार्केट कहा जाता था। बट नाउअडेज इट हैज ब्रॉडेंड। आप घर में बैठ के कहीं से भी सामान मंगा सकते हैं, isn't it? तो nowadays the concept of market is very broad. In geography of planning and development, each and every government has to plan. देखिए, हमारे घर में भी घर को चलाने के लिए, जो भी घर चलाता है उसके लिए भी प्लानिंग नेसेसरी है। इन द सेम वे फॉर रनिंग द गवर्नमेंट देयर मस्ट बी प्लानिंग। वही काम आजकल करता है नीति आयोग, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग 3 साल के लिए कुछ प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत हर साल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या पेश करती है पार्लियामेंट में? बजट पेश करती है। बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जहां पर एक्सपेंडिचर और इनकम का कच्चा चिट्ठा लिखा होता है, मतलब कितना इनकम आने वाला है और कहां कहां खर्चा करना है। तो हर घर में भी सेम है, इनकम अपना कितना है, खर्चा कितना करना है, दैट इज प्लानिंग। और प्लानिंग अच्छे से नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी। बात समझ में आ गया? प्लानिंग किस में आता है? टूरिज्म जियोग्राफी, कौन कौन से जगह पर पोटेंशियलिटी है जहां पर टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है, टाइप्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्रीज एंड प्लेसेस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्रीज, सब हम टूरिज्म जियोग्राफी में पढ़ते हैं। क्लियर? ओके, मूविंग अहेड नाउ। स्कोप या रेंज ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो मैं कहा। जैसे 5 स्कोप है, मैं फिर भी थोड़ा एक बार बोल देता हूं कि वेयर, कहां पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगी कहां पर होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व, द एक्टिविटी वेयर द मॉनेटरी टर्म इज इन्वॉल्व, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू अर्निंग मनी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक या रेंज ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी क्या है? वेयर वुड बी द प्लेस वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वुड टेक प्लेस, पहला। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किस तरीके का है, क्या में बना रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन से कैरेक्टर में आता है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हो सैलरीड पर्सन, वो जाके काम करते हैं। मैं खुद एक टीचर हूं गवर्नमेंट स्कूल का, तो इट मींस दैट माय एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई कैन नॉट से as teaching is a very noble profession, still if I teach just free of cost, then how can I survive? इसीलिए मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूं, बदले में मुझे सैलरी मिलती है। इट मींस दैट माई एक्टिविटी इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर एंसिलियरी मैटर्स और to what other phenomena related to economic activity, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड और क्या क्या है। जैसे सैलरी कहाँ आता है? बैंक में आता है, तो बैंकिंग एक्टिविटी इज एंसिलियरी एक्टिविटी। फिर हमें सब पैसा खर्चा भी नहीं करना है, कुछ पैसा जमा के रखना है, सेविंग करना है, इंश्योरेंस में सेव करेंगे। इंश्योरेंस इज क्या है? एंसिलियरी एक्टिविटी रिलेटेड टू इकोनॉमिक जियोग्राफी। क्लियर? द कॉस्ट ऑफ द प्लेस वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी टुक प्लेस, उसी प्लेस में क्यों होता है। जैसे स्कूल में ही पढ़ाई क्यों होता है, कॉलेज में क्यों होता है, मार्केट में पढ़ाई क्यों नहीं होता। तो हर एक जगह का अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट में भी होता है, आप मान सकते हो स्कूल में भी होता है, कहीं कोर्ट में भी होता है, isn't it? बट सबका अलग अलग डोमेन है, अलग अलग फेनोमेना है। एंड द कंसिक्वेंसेस इफ दैट इकोनॉमिक टेक प्लेस एवरी एल्सवेयर, और कहीं और जगह पर अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ये सब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक जियोग्राफी में। दैट इज द रेंज और इकोनॉमिक और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी वी कैन से। ओके,
Okay, now according to George Sishom, मेन पर्पस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होता है? इट इज टू डिटरमाइन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द प्लेस. स्पीड एंड डायरेक्शन मतलब डेवलपमेंट का स्पीड क्या है, फेसेस. जैसे आवर कंट्री इंडिया इज इन डेवलपिंग फेस, स्टिल नाउ वी कैन नॉट से दैट इंडिया इज डेवलप्ड कंट्री. लॉट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, स्टिल नाउ एग्जिस्ट. इसीलिए हम डेवलपिंग स्टेज में कह सकते हैं. बट चाइना नाउ इज अ डेवलप्ड कंट्री, isn't it? Whereas like Britain, USA, all these are developed countries. Clear? According to Jones Darkenwald, उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द particularly involved in the study of productive scholarship or activity. मतलब कुछ ऐसी चीज करो which is productive in nature. Productive in nature, that is economic activity. जैसे I am rendering my services of teaching in the school. In return, I am getting my salary. And that is what we can say productive activity. Isn't it? The doctor is visiting patients. And in return, he is getting the visiting fee. That is productive activity. Clear? Okay. अभी हम पढ़ेंगे कि occupation क्या होता है. काम. ऑक्यूपेशन इज एक्चुअली काम. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. पहला हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी. 4th लेवल ऑफ ऑक्यूपेशन. प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? जो वर्क्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर, जैसे माइनिंग वर्क हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ओके, फॉरेस्ट रिसोर्सेस हो गया. मतलब जो काम डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर, नेचर से एक्सट्रैक्ट करके ही मिलता है जो प्रोडक्ट्स, वो हो गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स. एंड उससे रिलेटेड जो भी काम होगा, ऑक्यूपेशन होगा, दैट इज प्राइमरी ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, एंड ऑल द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो प्रोडक्ट लाया जाता है उसको प्रोसेस करके एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को कहा जाता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. जैसे कि हो गया प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओके, जैसे शुगर केन कहां से लाया जाता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. शुगर केन एक्सट्रैक्शन इन ऑर्डर टू टेक इट फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड टू द शुगर मिल, ये एक्टिविटी हो गया आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन. बट शुगर मिल में शुगर केन को प्रोसेस करके इसका रस निकालने के बाद शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट. शुगर इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी एंड शुगर केन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी. क्लियर? टर्शियरी ऑक्यूपेशन क्या, या 3rd लेवल ऑफ हायर वर्क बोल सकते हैं हम लोग. द वर्क थ्रू विच पहला, फर्स्ट एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन दोनों में ही सुविधा होती है, मतलब आसानी होती है, वो हो गया आपका टर्शियरी. जैसे ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, कम्युनिकेशन. ओके, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट एंड कम्युनिकेशन, ऑल दिस आर टर्शियरी ऑक्यूपेशन. अगर शुगर के लिए मार्केट नहीं होगा, कोई कंज्यूम ही नहीं करेगा, तो शुगर बनाएंगे क्यों? अगर शुगर नहीं बनाएंगे तो शुगर केन उगाएंगे ही क्यों? बात समझ में आ गया? यहां से हम बता सकते हैं शुगर केन, मैंने क्या कहा, शुगर केन क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी में आता है या प्राइमरी ऑक्यूपेशन बोल सकते हैं. उसको प्रोसेस करके शुगर बनाया गया, ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कह सकते हैं. और इसको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में लिया गया है, तो ये मार्केट इटसेल्फ एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों आता है आपका टर्शियरी एक्टिविटी में या टर्शियरी ऑक्यूपेशन में. एंड इन ऑर्डर टू हेल्प द फार्मर्स, बैंक लोन प्रोवाइड करती है. इन ऑर्डर टू हेल्प द इंडस्ट्रीज, बैंक लोन देती है, इंश्योरेंस. तो बैंकिंग सेक्टर, मीडिया, एजुकेशन, रिसर्च, ये सारे क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन है. एंड वी कैन से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर एजुकेशन ही नहीं होगा पर्टिकुलर फील्ड में, तो क्या कोई प्रोडक्शन कर पाएगा? नो. तो एजुकेशन, मीडिया, बैंकिंग, इंश्योरेंस सब क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन है. क्लियर?
नेक्स्ट आ गया रिसोर्स। मैंने कह दिया था कि रिसोर्स होता क्या है, एवरीथिंग विच इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ एंड विच हैज द फंक्शंस एंड यूजफुलनेस आर एसेट्स या रिसोर्सेस। जैसे एयर, हवा, इसका यूजफुलनेस है, हवा एंड फंक्शन इज ऑल्सो देयर। हवा का फंक्शन भी है लॉट, बिकॉज एयर कंपोज्ड ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस वी नो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, सब कुछ है, isn't it? Now, when we inhale, ऑक्सीजन अंदर जाता है, एक्सेल, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन द स्मॉलर क्लासेस, फोटोसिंथेसिस 6 सीख के आ रहे हैं, isn't it? Now, all these are what? All these are resources. Air, water, पानी के बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकते। Fruits, houses, man-made resource. Water, fruits ये नेचुरल रिसोर्सेस है, बट इसे भी मैनमेड बनाया जा रहा है, हाइब्रिड फ्रूट्स, हाइब्रिड वेजिटेबल्स, ओके, बट एयर इज द नेचुरल रिसोर्स वी कैन से। एक अभी हम पढ़ेंगे कि जिम्मारमन उन्होंने क्या कहा था कि इन ऑर्डर टू बी एन एसेट एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव टू क्वालिटीज। एक तो इसका एफिशिएंसी होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, एंड यूटिलिटी या यूजफुल होना चाहिए, ओके। नाउ इफ आई से सिगरेट, ठीक है, इसका फंक्शन है, क्या फंक्शन है कि वो पिया जाता है, उसका फंक्शन है इसे पिया जा सकता है, इट इज इट्स एफिशिएंसी और फंक्शन, बट इट इज यूजफुल। इज इट यूजफुल? इट इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, वी कैन नॉट से सिगरेट इज ए रिसोर्स। बट वाटर फंक्शन है, वाटर से बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है, and it is useful also, तो water is a resource, clear? So for any product or anything to be resource, it must have two qualities, one is the efficiency or the functionality and इसका utility और usefulness। यार हम कह सकते हैं कि कोई भी सामान और कोई भी चीज जिसका यूजफुलनेस है उससे ही हम रिसोर्स कहेंगे, और जिसका फंक्शनलिटी है मतलब अभी उसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ओके बात समझ में आ रहा है? Resources is created as a result of the use of nature, people's values, social culture, science and technology, सब कुछ यूज करके रिसोर्स क्रिएट किया जा सकता है। People engage with the resources in two ways, या तो प्रोडक्शन करेंगे या फिर कंज्यूम करेंगे, दो तरीके से रिसोर्स के साथ इन्वॉल्व है। Either people will produce the resources or they will consume the resources, okay? हम कह सकते हैं कि resource is dynamic, it is not static, means आज जो रिसोर्स है कल वो चेंज होगा, कल जो रिसोर्स नहीं था आज वो रिसोर्स है। जैसे कि कोल पकड़ लो, before people learned the use of coal, before people learned the use of coal, तब उसका कोई यूजफुलनेस नहीं था, बट उसका फंक्शनलिटी था, पीपल उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, बट उससे रिसोर्स नहीं कहा जा सकता था, ठीक है। एट प्रेजेंट वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ से फ्लड वाटर। एट प्रेजेंट फ्लड वाटर वी कैन नॉट से दैट water is a resource, we know, but can we say flood water is resource? No, as it is harmful for the human beings, लोगों को डुबा देता है पूरा, but in future it may be helpful, isn't it? In future it may be helpful, इसीलिए हम कहते हैं कि resource is dynamic, it is not static in nature, clear? जैसे it is now possible to generate fire by rubbing primitive human stones and by using different resources for the same purpose, and to use the same resources of different purpose. It means that if people did not learn how to use or how to generate fire, तो अभी इसका यूज हम नहीं कर सकते थे, इसका different methods of using fire वो नहीं निकाल पाते। Clear to you? तो जब लोगों ने सीखा नहीं था कि how to use fire, तब तक फायर कोई रिसोर्स नहीं था, बट नाउअडेज फायर इज द रिसोर्स, बट ज्यादा लग गई तो ये हार्मफुल भी है। यूजफुलनेस तो है, उसका फंक्शनलिटी भी है। फायर फंक्शनलिटी क्या है? फायर आग लगाने से हीट पैदा होता है, ये इसका फंक्शनलिटी है। यूजफुलनेस आग की वजह से हम खाना पका सकते हैं, ओके,
यूजफुलनेस भी है, बट ज्यादा होने से हार्मफुल हो जाएगा। क्लियर? नाउ कुछ मटेरियल्स है न्यूट्रल या इनएक्टिव मटेरियल्स हम कह सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे मटेरियल्स है विच डू नॉट गुड एनी, इंसानों के लिए इतना मतलब सहायक भी नहीं है और लोगों को हार्म भी नहीं पहुंचा था, उसे हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल मटेरियल। एग्जांपल हो गया lots of minerals which are beneath under the soil still now not been extracted, we can say these are neutral materials। और resistance material कौन से हैं? Ingredients that harm people are called resistance materials such as barren soil। barren soil क्या है? जहां पर कुछ भी नहीं उगता, fertility of the soil खत्म हो चुका है, उसे हम कहेंगे resistant material। flood prone areas जैसे कि flood का water, polluted water, isn't it? Water is useful but polluted water is harmful, तो polluted water हो गया resistant material और clean water हो गया resource। Clear? So these are natural resources। देख लीजिए, you can see land, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं land हो गया, this is land, animals, isn't it? Then fish, forests, these minerals, these are gemstones and minerals, isn't it? All these are natural resources, मतलब naturally available which has the efficiency and usefulness are natural resources। तो types of resources हम पढ़ेंगे on the basis of origin, जिनका लाइफ होता है और जो ग्रो कर सकते हैं वो हो गया बायोटिक, जिनका कोई लाइफ नहीं होता और जो ग्रो नहीं कर सकते वो हो गया एबायोटिक। जैसे वाटर, सॉयल, जैसे स्टोन्स हो गया, उसके बाद सॉयल, ये सारा हो गया एबायोटिक रिसोर्सेस, और जिसका लाइफ होता है वो हो गया बायोटिक रिसोर्सेस। On the basis of exhaustibility, it means that all the resources which human uses will remain forever. Some resources are there which are exhausting day by day. Okay, though, so that's why on the basis of exhaustibility, there are two types of resources. One is renewable resources, another is non-renewable resources. Now, when we say renewable resources, the resources which get replenished after the use by themselves in a short span of time, इसे हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे फॉरेस्ट को काट दिया, फिर से पौधा उगा दिया, आ जाएंगे पेड़ पौधे। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक बार यूज करने के बाद सन इज स्टैटिक, सन इज एग्जिस्टिंग बॉडी, तो हमें सोलर एनर्जी मिलता रहेगा। विंड एनर्जी हमें मिलता रहेगा, दिस इज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी मिलता रहेगा, हवा रहेगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज आफ्टर यूजिंग वंस, this requires thousands of or millions of years to get replenished। okay, इसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एंड लॉट्स ऑफ गैसेस, गैस, ये सारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कुछ रिसोर्सेस होता है इंडिविजुअल, खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी, कुछ होता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, नेशनल रिसोर्सेस, इंटरनेशनल रिसोर्सेस। पढ़ लेते हैं अच्छे से। इंडिविजुअल रिसोर्सेस, घर, खुद का प्राइवेट लैंड, इजंट इट? पॉन्ड, उसके बाद वेल, घर, बंगलो, हाउसेस, खुद का प्राइवेट ओनरशिप लैंड, इसका फिर वेल या फिर पॉन्ड, ये सब क्या है? इंडिविजुअल ओनरशिप। ओके, बट व्हेन वी से कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जैसे कि सिमेट्री या क्रीमेट्री, दोनों ही, सिमेट्री हो या क्रीमेट्री हो, दोनों ही क्या है? कम्युनिटी ओन्ड, मतलब शमशान घाट या कब्रिस्तान, दोनों क्या होगा? दोनों किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं है, इट इज कम्युनिटी ओन्ड। रोड, व्हेनेवर वी से रोड, रिवर, रोड, रिवर, ओके, ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। रोड पर सबका चलने का हक है, रिवर का पानी सब यूज कर सकते हैं, दिस इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। क्लियर? लेक्स, जहां से पानी यूज किया जाता है, दैट वन। व्हेनेवर वी से नेशनल रिसोर्सेज, जो गवर्नमेंट का होता है, जैसे कि आप मान लीजिए रेलवे, रेलवे प्राइवेट ओन्ड नहीं है। क्लियर? फॉरेस्ट, ये भी हो गया फॉरेस्ट, ये सब नेशनल रिसोर्सेस है।
रिवर नेशनल रिसोर्सेस है। क्लियर। इंटरनेशनल रिसोर्सेस जैसे ओशंस एंड सीज। ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए इंडिया इज ए पेनिनसुला। इंडिया क्या है? पेनिनसुला है। इंडिया का जो लेफ्ट हैंड साइड है, इफ यू सी, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो इंडिया का वेस्ट साइड में क्या है? अरेबियन सी, अरेबियन सी। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। और साउथ में क्या है? इंडियन ओशन। सो क्या ये सारा इंडिया का ही पार्ट है? नो, वी कैन नॉट से। याद रखना, कोस्ट लाइन से, ये अगर इंडिया का कोस्ट लाइन है, तो यहां से 22 नॉटिकल माइल्स, 22 नॉटिकल माइल्स इन द ओशन, इसे हम इंडियन प्रॉपर्टी कहेंगे। और उसके बियॉन्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेस, मतलब सारे देश का हक है इधर। क्लियर। नेक्स्ट आ गया कुछ स्पेशल रिसोर्सेस। स्पेशल रिसोर्सेस क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेस दैट आर अवेलेबल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। सब जगह अवेलेबल नहीं है, उसे हम कहेंगे स्पेशल रिसोर्सेस। जैसे कि कोल, हमारे इंडिया में ही हर जगह कोल नहीं पाया जाता। मैक्सिमम कोल कहां पाया जाता है? झारखंड। पहले पाया जाता मेघालय, असम में भी है, असम में भी पाया जाता है। कहां पर? माकुम। असम में एक जगह है माकुम कोलफील्ड, यहां पर पाया जाता है। एंड देयर आर अदर कोलफील्ड्स आल्सो, नहरकोटिया एंड ऑल, दुलियाजान। गैस इज ऑल्सो देयर, नेचुरल गैस, प्लांट्स, एनिमल्स, जैसे कि असम का राइनोस, वन हॉर्न राइनोसर्स ऑफ असम, ये सिर्फ असम में ही पाया जाता है, मैक्सिमम असम में पाया जाता है। ओके, सो दीज आर स्पेशल रिसोर्सेस जो पर्टिकुलर रीजन में ही पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। ओके, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि डायमंड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी डायमंड प्रोड्यूस होता है उसका 80% साउथ अफ्रीका में है। क्लियर। सो दीज आर स्पेशल रिसोर्सेस। नाउ up to or till now we can say that we have studied about resources, but now we need to think about the SDGs, sustainable development goals. It means that whatever the resources available to us, we must not use them all, because there are lots of generations to come. If we do use all the resources by ourselves, what would be available for the next generation which are coming day by day? उसके लिए कंसेप्ट आया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। डू रिमेंबर, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस इज नॉट इक्विवेलेंट टू प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, दो कंसेप्ट है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि रिसोर्सेस को ऐसे बंद कर देना ताकि उसे और कोई यूज ना कर पाए, और कंजर्वेशन मतलब होता है कि आप यूज करो बट इन ए गुड मैनर, टू द फुल एक्सटेंट, पॉसिबल एक्सटेंट, विदाउट एनी मिसयूज और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। इससे बोलता है कंजर्वेशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मेन क्यों है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस का कंसेप्ट आया ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है सब पर इंसानों का हक नहीं है। सारे एनिमल्स जो भी इस दुनिया में है सबका रिसोर्सेस पर बराबर का अधिकार है, और जो भी इंसान आगे आने वाले हैं उनका भी बराबर का अधिकार है। क्लियर। इसीलिए कंसेप्ट आया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। नाउ हाउ टू सेव रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को सेव कैसे किया जा सके? पहला, हमें ऑल्टरनेटिव यूज रिसोर्स को ढूंढना चाहिए। जैसे कि इंस्टेड ऑफ कोल एंड पेट्रोल अभी यूज किया जा रहा है सीएनजी, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी से चलाया जा रहा है गाड़ियां। दिल्ली मेट्रो में, बहुत सारे मेट्रो सिटीज में सीएनजी की गाड़ी चलती है। तो कोल एंड पेट्रोल से शिफ्ट किया गया सीएनजी में, अभी सीएनजी से शिफ्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इससे क्या होगा? एनर्जी कंजर्व किया जा सकता है। रिसाइकलिंग,
इसका मतलब कुछ ऐसे जैसे कि ओल्ड पॉलीबैग्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, पेपर हो गया, आयरन, टीन मटेरियल, इन सबको क्या करना चाहिए, जो पुराना हो गया है उनको रिसाइकल करके फिर से नया बनाना। इनोवेटिव और इनोवेशन एंड अडेप्टेशन, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ताकि सॉइल को कंजर्व किया जा सके। क्लियर। रिड्यूस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कि द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय लिमिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स and recycling as such as waste batch produced in paper mill, used in cottage industry, या making dolls with used old cloth, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे कि पेपर इंडस्ट्री में जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है उससे क्या डिफरेंट कॉटेज इंडस्ट्री में ये यूज किया जा सकता है कि नहीं, इससे वेस्ट कंट्रोल होगा। उसके बाद जो टेक्सटाइल मिल्स होते हैं उसका जो वेस्ट निकलता है, या फिर कपड़ा यूज करने के बाद यूज हो जाता है उससे डॉल बनाया जा सकता है, इससे भी वेस्ट कंट्रोल होगा। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन विच आर एक्टिंग टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पहला आता है आपका IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो इंटरनेशनल बॉडी है ये एक हर साल एक बुक पब्लिश करती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। यहां पर ये बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना, मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट है, एंडेंजर्ड है और इन द पाथ ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसका एक लिस्ट निकालती है। ठीक है, मैं एक बात बोल रहा हूं, आप लोग खुद देख लेना। स्पेरो, SPARROW, स्पेरो। Earlier, before the installation of mobile towers, बहुत सारे स्पेरो हमें दिखाई देते थे, but nowadays its population has decreased 80% and now only 20% sparrow left in the earth. 80% इसका population decrease हो गया, क्यों? Due to the harmful radiations caused by the mobile towers. Okay? तो अगर पूरे दुनिया से स्पेरो खत्म हो गए, क्या होगा? लॉकस्ट अटैक बहुत बढ़ जाएगा कॉर्न क्रॉप फील्ड के ऊपर। यू हैव स्टडीड अबाउट इट दैट लॉकस्ट अटैक। लॉकस्ट क्या होता है? एक तरीके का कीड़ा होता है जो सारा क्रॉप फील्ड को नष्ट कर देता है, और ये स्पेरो और जितने भी बर्ड्स है ये क्या करती है, उन लोकस्ट को अपना चारा बनाती है, खा जाती है और इससे एनवायरमेंटल बैलेंस बना के रखती है। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड है, WCMC, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। इंडिया में भी है बहुत सारे, जैसे हो गया आपका इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, एस्टैब्लिश्ड इन 1986। ये क्यों है? व्हाई आर दीज इंडस्ट्रीज और दिस ऑर्गेनाइजेशन? ओनली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द नेचर, ताकि एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन हो सके। ईच एंड एवरीथिंग विच इज existing in the environment or existing in the earth are useful for the environmental balance. Clear? So that's it. आसाम में भी कुछ है, जैसे कि अरण्य क्या हो गया, आसाम साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल काउंसिल, आप पढ़ सकते हो इनके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, गूगल में चले जाना, मारना, उनके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको ज्यादा जानना है। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके फिर वीडियो को शेयर कर देना है। ओके, टिल नाउ, गुड बाय।